ચીનમાં ફેલાયેલા કોરોના જેવા વાયરસ HMPVનો ત્રીજો કેસ ભારતમાં જોવા મળ્યો છે। અમદાવાદમાં એક 2 મહિનાના બાળકને હ્યુમન મેટાપ્યુમો વાયરસનો ચેપ લાગ્યો હતો। આ પહેલા સોમવારે જ કર્ણાટકમાં 3 મહિનાની છોકરી અને 8 મહિનાના છોકરામાં આ વાયરસ જોવા મળ્યો હતો। આ મામલે ઋષિકેશ પટેલનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે। કર્ણાટકમાં બંને કેસ અંગે કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે કહ્યું હતું કે બાળકો રૂટીન ચેકઅપ માટે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા। ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ તેમનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો। જોકે કર્ણાટકના આરોગ્ય વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે બાળકોના નમૂનાનું પરીક્ષણ સરકારી લેબમાં નહીં પરંતુ ખાનગી હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવ્યું હતું। ચીનમાં ફેલાઈ રહેલા નવા હ્યુમન મેટાન્યુમો વાયરસે સમગ્ર વિશ્વ સાથે ભારતની પણ ચિંતા વધારી દીધી છે। ત્યારે હાલ ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરીમાં બહોળી સંખ્યામાં સ્વદેશ આવેલા NRIમાં પરત જવા અંગે ચિંતાનું મોજું ફરી રહ્યું છે। વાયરસનું સંક્રમણ વધી રહ્યું છે ત્યારે ભારતમાં પણ આ વાયરસના પ્રથમ કેસથી ચિંતા ખૂબ વધી ગઈ છે। NRI પોતે સરળતાથી પરત વિદેશ જઈ શકે તે માટે તેઓ પણ સમગ્ર ઘટના અને સરકારી ગાઈડલાઈન પર નજર રાખી રહ્યા છે। વિદેશથી આવનારાઓ માટે HMPV એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવશે। વાયરસનો પ્રથમ પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા બાદ ગુજરાત સરકાર એક્શનમાં છે। RT-PCR ટેસ્ટ ફરજિયાત કરવામાં આવશે। આ કેસ અંતર્ગત અમદાવાદમાં આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે SSG હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી। આ મામલે ઋષિકેશ પટેલનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે। તેઓએ ગુજરાતના આ પ્રથમ કેસ વિશે ચર્ચા કરતા જણાવ્યું હતું કે તે રાજસ્થાનના ડુંગરપુરનો બાળક છે જેનો કિસ્સો ગુજરાતના અમદાવાદમાં પ્રકાશમાં આવ્યો છે। અમારી પાસે હાલમાં છે તે તમામ હોસ્પિટલોમાં પરીક્ષણ સુવિધાઓ બનાવવામાં આવશે। તેઓએ આ વાયરસના લક્ષણ વિશે ચર્ચા કરતા જણાવ્યું હતું કે આ વાયરસ શરદી અને ઉધરસ જેવી સમસ્યાઓનું કારણ બને છે અને છેલ્લા સ્ટેજમાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે। રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર આ મામલે ચિંતિત છે અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ અંતર્ગત માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવશે। તેઓએ ગુજરાતની જનતાને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે કોવિડ હોય કે અન્ય રોગચાળો રાજ્ય સરકાર તૈયાર છે। સાવચેતી તરીકે અમે કેન્દ્રની સલાહને જાણ કરીશું। હવેની અદ્યતન ટેકનોલોજી અને વેક્સિનને જોતા હવે માસ્ક પહેરવાની જરૂર લાગતી નથી તેમ લાગી રહ્યું છે। सर आप उसे कंफर्म करते हैं? सुबह में जब आपने ये प्रश्न पूछा तब मैंने बताया था कि मेरे पास तथ्य अभी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो एक 2 मास का बच्चा जो डूंगरपुर राजस्थान से आया था सारवार के लिए, उसमें ये डिटेक्ट हुआ है और उसको सारवार के अर्थे अहमदाबाद भेजा गया है। सर कितना प्रिकॉशन रखना चाहिए क्योंकि ये अहमदाबाद में पहला आया और साथ में वैक्सीनेशन पूरे दुनिया में और साथ में वैक्सीन दूसरे देशों में भी दी गई थी। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है। पूरी दुनिया के लिए आरोग्य विभाग केंद्र सरकार बहुत ही उदाहरण रूप प्रस्तुत किया है। सर फॉरेन से आ रहे हैं जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी कोई स्क्रीनिंग के लिए इसमें कोई पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से अपने जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उस पर सावचेती बरतने की वो वहाँ से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियाँ बरत रही है और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं। सर कोरोना वायरस जब आया था तभी भी सरकार ये कितना प्रिकॉशन रखना चाहिए? कोविड के टाइम पे भी जो डूज एंड डोंट्स जो दिए गए थे उस हिसाब से ये संक्रमण जो फैलता है तो वो ऐसे छींकने से या हवा से, फिर बहुत सारे हाथ धोना है, किसी के संपर्क में जिसको भी हुआ है तो उससे नहीं आना है, वगैरह वगैरह जो भी है वो हमें उसका पालन करना है। SOPs और जो गाइडलाइन है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है वो राज्य सरकार की ओर से ये SOP भी जारी होगी, शायद आज ही हो जाएगी। सर राज्य सरकार के द्वारा लोगों के अंदर तो ये जो नया वायरस है क्या वो भी कोरोना वायरस जैसा ही फैलता है या फिर संक्रमित ज्यादा लोग नहीं होते? इससे क्या कहेंगे आप? इसमें अभी कोई एडवाइजरी या उसके बारे में कुछ केंद्र सरकार की ओर से बताया नहीं गया है, लेकिन
फिर भी सावधानी बरतने की हिदायत तो केंद्र सरकार और अपनी जो संस्थाएं उसने दी है। उस हिसाब से गुजरात सरकार भी काम कर रही है और अन्य राज्य भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। सर वो टेस्टिंग और ट्रेसिंग किस तरह से होगा पेशेंट का? अभी ट्रेसिंग का कोई सवाल नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो RT-PCR के मशीन से वहाँ पर उसकी अलग से किट आती है, वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया है कि कहाँ पर भी ऐसे कोई भी शंकास्पद केस मालूम हो तो तुरंत ही उसका टेस्टिंग हो सके। सर राज्य सरकार कितनी अलर्ट है इस बात को लेकर? बिल्कुल अलर्ट है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उसके लिए सभी सावधानियां बरत रही है, राज्य सरकार तैयार भी है, लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर अगर ये आगे परिस्थिति खराब होती है तो हमारी ओर से क्या क्या तैयारियां हैं? मैंने पहले भी बताया आपको, सरकार की ओर से हर संभव ये संक्रमण अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस में ये होता है तो पूरी तैयारी है, लेकिन ये कोविड जैसा कोई मामला नहीं है। कोविड समय अलग है, अलग है, अभी भी है। दुनिया के अंदर कई सारे देश में कोविड का संक्रमण आज भी है, लेकिन अपने भारत में उसको हम पूरा करने में सक्षम रहे हैं। और इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की आबादी, विविध कल्चर, भाषाएं अलग, बहुत सारे डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज, उसके बीच में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कोविड के अगेंस्ट जो नीति अपनाई थी, उसकी वजह से इतने बड़े देश में અંગે ડોક્ટર નીરવ પટેલ કે જેઓ કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ પીડિયાટ્રિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, જેઓ હાલ ચાંદખેડા અમદાવાદ ખાતે ફરજ બજાવી રહ્યા છે, તેઓ પણ આ વાયરસ અંગે જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે આ વાયરસને લઈને પેનિક થવાની જરૂર નથી. સાથે સાથે એ અંગે પણ જાણકારી આપી હતી કે આ વાયરસ કોને કોને લાગી શકે છે અને તેના લક્ષણો શું છે, તેના માટે કેવી તકેદારી રાખવી જોઈએ, તેમજ એનો ઇલાજ શું છે તે અંગે વિડીયોના માધ્યમથી વિસ્તૃતમાં જાણકારી આપી હતી. આવો સાંભળીએ. Hello everyone, I am Dr. Neerav Patel, consultant neonatologist and pediatric intensivist at Orange Children Hospital, चांदखेड़ा, अहमदाबाद. अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है. ये वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को ये इन्फेक्शन कैसे लगता है, कौन कौन से बच्चों में या एडल्ट्स में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को. कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है. जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 ऑफ दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे. उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 days था. वो मोडासा के आगे, अहमदाबाद गुजरात में जो मोडासा के आगे एक विलेज है वहां से आए थे. बच्चे को 2-3 दिन हमने छोटे मशीन पे रखा. उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया. ऑलमोस्ट 5 days वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया. वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन. उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है. तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन. उस बच्चे में मेनली इश्यू था कि बच्चे को पहले भी जब न्यूबॉर्न बच्चा था तो प्री मैच्योर था, जिसकी वजह से बच्चे को वेंटिलेटर सर्फेक्टेंट नाम का फेफड़ों का इंजेक्शन होता है वो भी देना पड़ा था. तो ये बच्चा इसीलिए में भी इससे प्रभावित हुआ होगा क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे. तो ये नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज है उसमें इसके कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए या उससे ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है. जस्ट जो रूटीन केयर हम बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी हो आप मास्क यूज करो. नॉर्मली हैंड वॉशिंग हम बोलते हैं कि दिन में 10 से 12 बार हैंड वॉशिंग करते रहो. और जिसको भी लगे ऐसे संक्रमित हुए वो लोग जस्ट यूज योर मास्क, कि नॉर्मली जो अपना सिंपल वाला मास्क भी होता है, इवन क्लॉथ मास्क इज ऑल्सो यूजफुल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन. थैंक यू.